اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین۔ بنڈل آف نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہماری یہ دنیا اللہ پاک کی لازوال قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور کارخانہ قدرت کی کاریگری کی مثالیں ہمیں گاہے باگاہے اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں۔ اور ناظرین کرام، قدرت کی کارسازی کے کرشمے جنہیں دنیا معجزوں اور عجائبات کا نام دیتی ہے، ہمیشہ سے بنی نوع انسان کی دلچسپی کا محور رہے ہیں۔ یوں تو ہر نفس اپنی ہی ذات میں ایک انجمن ہوتا ہے، تاہم جب یہ کہا جائے کہ 21ویں صدی کے وسط میں آج بھی ایک ایسا پرندہ موجود ہے جس کی مشابہت آج سے 3 کروڑ برس پہلے جیسے پرندوں جیسی ہے، تو یقیناً حیرت انگیز بات ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر یہ کہا جائے کہ اس دنیا میں ایک ایسا پرندہ بھی پایا جاتا ہے جو مسلسل 10 ماہ تک ہوا میں پرواز کرتا رہتا ہے، تو بھی کچھ عجب نہیں، کیونکہ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ تمام دوستوں کو اس دنیا میں پائے جانے والے ایسے ہی کچھ عجیب و غریب پرندوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیلیکن کی۔ یہ پرندہ جسے پیلیکن کا نام دیا گیا ہے، آج سے ہزاروں برس پہلے پائے جانے والے عظیم الجثہ ڈائناسور کے زمانے میں موجود ٹراڈکٹائل سے ملتا جلتا ہے۔ صرف قدامت ہی نہیں بلکہ پیلیکن کی عجیب و غریب اور انفرادی چونچ بھی دلچسپی کا باعث ہے۔ اس کی چونچ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا اوپر والا حصہ عام پرندوں کی چونچ جیسا ہی ہے، تاہم نچلا حصہ تھیلا نما ساخت رکھتا ہے۔ اس تھیلے میں وہ اپنے لیے مچھلیاں محفوظ کرتا ہے۔ مچھلیوں کی تعداد اتنی ہوتی ہے جو اس کی خوراک کے لیے کافی ہوں۔ پیلیکن کی تاریخ تو قدیم ہی ہے۔ اس کی جسامت اور بناوٹی خصوصیت نے اسے عجائبات قدرت میں شامل کر دیا ہے۔ وہ ان پرندوں کی باقیات خیال کیا جاتا ہے جو آج سے 3 سے 4 کروڑ سال پہلے کرۂ ارض پر موجود تھے۔ اس زمانے میں پرندوں کی تقریباً 1.5 کروڑ اقسام پائی جاتی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پرندوں کا وجود مٹتا گیا اور اب یہ تعداد اقسام کے لحاظ سے 9000 کے قریب رہ گئی ہے۔ پیلیکن ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے بالکل پرکشش نہیں ہوتا، نہ اس میں خوبصورتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی شان نرالی ہے۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بطخ کی شکل بگاڑ کر رکھ دی ہو۔ اس کے پاؤں بھدے اور بڑے بڑے چپو کی مانند ہیں۔ یہ تیرتے اور اڑتے وقت بہت عجیب لگتا ہے، خصوصاً جب تیرتا ہے تو یوں معلوم پڑتا ہے جیسے اس کی گردن میں بل پڑ گیا ہو۔ اپنے مضحکہ خیز حلیے اور عجیب و غریب بناوٹ کے باوجود پیلیکن غضب کا شکاری ہے، اور اس کی چونچ 1 فٹ تک لمبی ہوتی ہے، اور یہی اس کی دلچسپی کی علامت ہے۔ پیلیکن اڑنے والا پرندہ ہے مگر تیراکی میں بھی ماہر ہے۔ اڑتے وقت اس کے طاقتور پر 6 سے 10 ہزار فٹ تک پھیل جاتے ہیں، اور اس کی رفتار اڑتے وقت 40 میل فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اپنے بھاری وجود کے باوجود یہ کئی گھنٹوں تک فضا میں اڑتا رہتا ہے۔ بھورے رنگ کے پیلیکن پرندوں کا غول صبح سویرے یا غروب آفتاب کے وقت دیکھا جائے تو دیکھنے والے کو یہ نظارہ محصور کر دیتا ہے۔ پیلیکن ایک قطار کی شکل میں سفر کرتے ہیں، اور جب یہ غول پرواز کرتا ہے تو ان میں سے ایک پیلیکن رہنمائی کا کام انجام دیتا ہے۔ ان کی خوراک مچھلیاں اور ایک دیگر سمندری کیڑے مکوڑے ہیں۔ پیلیکن جب سمندر پر محو پرواز ہوتا ہے تو یہ 50 فٹ کی بلندی سے بھی اپنا شکار دیکھ لیتا ہے۔ جب ایک پیلیکن کو سمندر میں اپنا شکار دکھائی دے جائے تو وہ ایک دم اپنی پرواز کا رخ تبدیل کر کے سمندر کی طرف مڑ جاتا ہے، اور اپنے نصف کھلے ہوئے پروں کے ساتھ سمندر میں غوطہ لگا دیتا ہے۔ غول میں موجود باقی پرندے بھی اس کی تقلید کرتے ہیں، اور جب یہ سمندر سے اپنا شکار کر کے واپس سر نکالتے ہیں تو ان کی تھیلے نما چونچیں مچھلیوں سے بھری ہوتی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ
भारी जिसामत के बावजूद जब पेलिकन 50 फीट की बुलंदी से समंदर में छलांग लगाते हैं तो उनके भारी जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो इसका जवाब भी कुदरत की कारसाजी में ही पोशीदा है। दरअसल पेलिकन की खाल के नीचे छोटे छोटे कुदरती खाने होते हैं, शहद के छत्ते की मानिंद, जिनमें हवा भरी रहती है। हवा के बाइस न सिर्फ ये समंदर में गोता लगाने की सलाहियत रखते हैं बल्कि गहराई तक गोता लगाकर दोबारा उड़ भी जाते हैं। पेलिकन ऐसा शिकारी है, अगर वो 5 मछलियों को शिकार करना चाहे तो 4 तो लाजमत उसकी पकड़ में आ जाती हैं। उसे भूख चूंकि बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए जहां ये रहता है वहां की मछलियां बहुत जल्द खा जाता है। इसी वजह से खुराक का कहत पैदा हो रहा है। धीरे धीरे इसकी नस्ल फना की जानिब गामजन होती जा रही है। अब आ जाते हैं उस परिंदे की जानिब जो मुसलसल 10 माह की मुद्दत तक परवाज करता रहता है। नाज़रीन करम, जमीन पर उतरे बगैर मुसलसल 10 माह तक उड़ने वाला परिंदा भी इस दुनिया में मौजूद है। माहिरीन का एक अरसे से ख्याल था कि बाज़ परिंदे मुसलसल कई माह तक फजा में परवाज करते रहते हैं और इस दौरान जमीन पर नहीं उतरते, लेकिन अब साबित हो गया है कि अबाबील की तरह का एक परिंदा कॉमन स्विफ्ट में ये सलाहियत पाई जाती है। कॉमन स्विफ्ट यूरोप और एशिया में पाया जाता है। दरमियानी जिसामत का ये परिंदा साल के बेशतर वक्त दौरान परवाज रहता है। बाज डेटा से जाहिर हुआ है कि साल में 10 माह तक ये परिंदा मुसलसल उड़ता रहता है। ये परवाज के दौरान ही हवा में उड़ने वाले छोटे कीड़े मकोड़े खाता रहता है। इसके अलावा नर और मादा परिंदे परवाज के दौरान ही मिलाप करते हैं, यहाँ तक कि ये परिंदा फजा के अंदर खास गोशों में पर हिलाने के बजाय मुशक्कत छोड़ देते हैं और हवा में ग्लाइड करते हुए सो जाते हैं और हवा के ये गोशे थर्मल कहलाते हैं। 1950 के अशरे में ही बाद माहिरीन हैवानात के ऐसे परिंदों का ख्याल पेश किया था, लेकिन 2016 में तहकीक के बाद बगैर रुके मुसलसल परवाज करने वाले स्विफ्ट की तफसीलात सामने आई हैं। इससे कबल हम जान चुके थे कि फ्रेगेट्स और एल्पाइन स्विफ्ट मुसलसल 1 माह तक उड़ सकते हैं। इस तहकीक को स्विट्जरलैंड की लेवेंट यूनिवर्सिटी ने आगे बढ़ाया है, जिनमें स्विफ्ट की 19 इकसाम को ट्रैक किया गया। उसमें मालूम हुआ कि कॉमन स्विफ्ट अबाबीलें 10 माह की परवाज में 99% वक्त हवा में गुजारती हैं, लेकिन उनका ख्याल है कि इस दौरान वो नस्ल खेजी नहीं करती। तहकीक में शामिल एक साइंसदान एंडर्स हेंड्रोसम ने कहा है कि परिंदा परवाज के दौरान नींद भी लेता है, लेकिन उसकी ज्यादा तफसीलात नहीं मिल सकी हैं। शायद ख्याल है कि ये फ्रेगेट और एल्पाइन स्विफ्ट की तरह उड़ते दौरान नींद पूरी करता है। माहिरीन का कहना है कि इस पर मजीद तहकीक की जरूरत है। नाज़रीन करम, दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी पाया जाता है जो आग से मरता और आग से पैदा होता है। इस परिंदे का नाम फोनिक्स या इसे फायरबर्ड भी कहते हैं। ये परिंदा अपनी कुछ गैर मामूली खुसूसियात की वजह से मशहूर है। इसमें सबसे अहम बात इसका सदियों तक जिंदा रहना है, बल्कि ये अगर कहा जाए कि इसकी जिंदगी ना खत्म होने वाली है तो ज्यादा बेहतर है। इस परिंदे के मुतालिक जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये परिंदा 500 से 600 साल तक जिंदा रहता है। इसके बाद ये खुद को आग लगाकर जलाकर राख कर देता है और फिर इसकी राख से इसी की नस्ल का नया परिंदा जन्म लेता है। इस परिंदे के मुतालिक हर तहजीब के अपने अपने नजरियात हैं। मिसाल के तौर पर चीन में इसे रोगन कहा जाता है, तुर्की में इसका अपना नाम है। जो बात सब में मुश्तरक बात है वो ये है कि इसे एक मुकद्दस परिंदा माना जाता है और इसका निशान बेहतरीन शगुन तस्वुर किया जाता है। इसकी तारीख के मुताबिक ये अरब में पाया जाता है। पहाड़ों के अंदर दरख्तों की बड़ी चोटियों पर बसेरा करता है। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये 1400 साल तक जिंदा रह सकता है। जब ये खुद को आग लगाकर जलकर राख हो जाता है फिर ये सूरज का इंतजार करता है। सूरज की शुआएं जैसे ही इस पर पड़ती हैं ये दोबारा जन्म ले लेता है और इसकी खुसूसियात बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे पहले परिंदे की होती थी। इस परिंदे की जो सबसे बड़ी खुसूसियत है वो ये है कि ये अपने पंजों की ताकत से हाथी को भी उठाकर ले जा सकता है। इसके अलावा इसकी जो और खुसूसियत है वो ये है कि इस परिंदे ने कभी ज़मीन को नहीं छुआ। इसके बारे में कहा जाता है कि ये परिंदा दुनिया के तमाम उलूम से वाकिफ है और ये एक बावफा परिंदा है, इसलिए इसे लॉयल बर्ड भी कहा जाता है। और अब वीडियो के आखिर में बात करते हैं उक्काब की।
नाज़रीन करام, क्या आप जानते हैं कि उकाब 40 साल का होने के बाद अपनी चोंच क्यों तोड़ देता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। उकाब ऊंची उड़ान भरने वाला सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ज़हीन परिंदा कहलाता है। उकाब सिर्फ एक परिंदा ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बेहतर शिकारी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी दुनिया भर में 60 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। ये वो परिंदा है जिसकी मिसाल लोगों को दी जाती है कि बुलंद किरदार होना है तो उकाब की तरह बनो। इसके अलावा चंद हैरत अंगेज मालूमात उकाब के मुतालिक ये है कि उकाब की आम तौर पर उम्र 20 से 40 साल होती है, लेकिन अक्सर उकाब 80 साल तक जिंदगी जीते हैं। कहा यह जाता है कि उकाब को 40 साल की उम्र में दूसरी जिंदगी मिलती है, क्योंकि इसके बाद वो 5 माह तक अपनी तकलीफों से गुजरते हैं और एक नौमौलूद उकाब की तरह दोबारा सेहतमंद हो जाते हैं। इसकी चोंच में शदीद तकलीफ के बाइस वो कुछ पकड़ नहीं सकता और फिर खुद अपनी चोंच को पहाड़ों और दरख्तों में मारता है ताकि ये टूट जाए, और 5 माह बाद ये जब दोबारा वापस आती है तो एक बार फिर ये खाने पीने और शिकार के लायक हो जाता है। दरख्तों पर से सबसे बड़ा और मजबूत घोंसला भी उकाब ही बनाते हैं। ये घोंसला 20 फीट गहरा, 9.6 फीट चौड़ा और तकरीबन 2 टन वजनी हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े उकाब के पर 250 सेंटीमीटर से जायद लंबे होते हैं और ये उकाब बड़े जानवरों के शिकार के लिए जाने जाते हैं, जिनमें हिरन, बकरियां और बंदर शामिल हैं। फिलिपाइन के उकाब दुनिया के सबसे ताकतवर, वजनी और बड़े उकाबों में से एक हैं। इनकी लंबाई 102 सेंटीमीटर जबकि वजन 8 किलोग्राम तक होता है। उकाब की नज़र इंसानों के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा तेज़ होती है। इंसान को बुनियादी तौर पर सिर्फ 3 रंग दिखाई देते हैं, जबकि उकाब 5 रंग देख सकते हैं। उकाब की मैरिटियल ईगल नामी किस्म तवील वक्त तक बगैर पर हिलाए भी ऊंची परवाज करने की सलाहियत रखती है। उकाब शाख पर बैठकर भी सो सकता है। सोते में इसके पांव शाख को जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ये गिरता नहीं है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, ये तमाम परिंदे बेशक अल्लाह जल्ल शानहू की खल्लाकी सिफ़त का मुंह बोलता सबूत हैं। अगर आप तमाम दोस्तों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने प्यारों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से भी आगाह करें। शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला फिर नई वीडियो में आप तमाम दोस्तों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।